नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर क्या बोलते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड वीडियो बनाने वाले हैं। हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस कर लिया था। वी हैड डिस्कस्ड टिल हियर। थर्ड सेक्शन पूरा का पूरा हमारा खत्म हो गया था। अब हमें फोर्थ सेक्शन शुरू करना है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है। नाउ अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के अंदर होता क्या है हमारे पास? नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगैन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। जब लोगों को लगने लगा कि ये सभी के सभी लोग एक ही देशवासी हैं, एक ही इंडिया को बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि क्या बोलते हैं नेशनलिज्म को उन्होंने बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं अपने डेली लाइफ में अपनाना शुरू किया। But how did nationalism became a reality in the minds of people? How did people belonging to different communities, regions, and language groups develop a sense of collective belonging? कैसे? How did that happen? This sense of collective belonging came partly through the experience of the united struggle. What was the united struggle of the people in India at that time? What was the united struggle? क्या struggle था उनका? Fighting against the British. That was something that was common in all of us. ठीक है? But there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. History and fiction, history and fictions, folklore and song, popular paintings and symbols all played a part in the making of nationalism. ये सारी की सारी चीजें हमारे नेशनलिज्म के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा बने। आर्ट, कल्चर और क्या बोलते हैं तुम्हारा आर्ट के अंदर क्या क्या आता है तुम्हारा? हाँ, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, प्रिंट, सिंबल्स और हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर, ये सभी के सभी क्या थे? दीज वर ऑल पार्ट ऑफ आवर नेशनलिस्टिक मूवमेंट। आरिफ ध्यान दो यहाँ पे। The identity of nation, as you can see, chapter 1 is most often symbolized in a figure or an image. This helps to create an image with which people can identify the nation. It was in the 20th century, with the growth of nationalism, that the idea of India came in to be visually associated with the image of Bharat Mata. ठीक है, a female figure, भारत माता, she was the क्या बोलते हैं symbolic representation of what India was for all the people who were fighting for the freedom of India. The image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in the 1870s. He wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. Later, it was included in the novel Anantamat and widely sung during the Swadeshi movement in Bengal. तो तुम्हारा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे who wrote वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा था? ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे यहाँ पे हमारे ऑथर। ठीक है, उसके बाद what was the symbol who represented India? That is a better question. Who represented India? अरे तुम भी क्वेश्चंस लिखते रहो। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया? हमारा जो इंडिया जो था, भारत माता करके एक फिगर जो थी, शी वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। नाउ मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अभेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट, ये पूरा का पूरा यही है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक तुम्हारा भारत माता है। ठीक है, अभेंद्रनाथ टैगोर ने इसको पेंट किया था। और इस पेंटिंग के अंदर व्हाट वाज द एस्थेटिक फिगर रिप्रेजेंटिंग? शी इज काम। किस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया गया है? शी इज काम, composed, divine, and spiritual. In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular print and was printed by different artists. Devotion to this mother figure came to be an evidence of one's nationalism. People
started praying towards, people started devoting their life for Bharat Mata. अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं इंडिया को? Now, ideas of nationalism also developed through a movement to revive the Indian folklore. In the late 19th century, in India, nationalists began recording folk tales sung by bards. Bards कौन होते हैं? तुम्हारे ये जो फोकलोर गाने वाले जो लोग होते हैं इनको हम लोग बार्ड्स बोलते हैं. Bards, हाँ, ballads, they basically bards जो थे, जैसे शेक्सपियर was a bard, he was a poet, ठीक है, bards, and they toured villages to gather folk songs and legends. These tales, they believed, gave a true picture of the traditional culture that had been corrupted and damaged by the outside forces. तो basically यहाँ पे what was one of the other ways by which तुम्हारा nationalistic identities को वो लोग improve करने लगे, by collecting the stories, by collecting the songs from all over India. हर इंडिया के हर एक कोने से they started basically recording, they started bookkeeping, books बनाना शुरू किया और उसको हर जगह स्प्रेड करना शुरू किया. नहीं, वही वही मगर बहुत सारे ऑलरेडी फोकलोर थे, अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों के लोकल फोकलोर थे, उसको उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया. रिकॉर्ड करके क्या किया, दे स्टार्टेड मेकिंग अदर पीपल लिसन टू इट एज वेल. हर किसी को ये सॉन्ग, ये स्टोरी, ये प्लेस हर जगह दिखाने लग गए, सो दैट पीपल कुड नो कि क्या बोलते हैं इनकी स्टोरी क्या है. देयर इज समवन लाइक दैट. अभी हम लोग वी स्टिल डू इट, हम लोग मूवीज के थ्रू करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोकल लोकल जगह के कहानियों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके उसके ऊपर एक कहानी लिखते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, या फिर क्या बोलते हैं तुम्हारा ये हाँ, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स इनको बोला जाता है. उसके थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे मूवीज बनाए हैं. Now, it was essential to preserve this folk tradition in order to understand one's national identity and restore a sense of pride in one's past. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? The Britishers had completely destroyed our own identity. हमारी एक जो सेल्फ इमेज या फिर सेल्फ आइडेंटिटी थी, उसको ब्रिटिशर्स ने पूरी की पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की थी. ठीक है, उन्होंने हमारे जो ट्रेडिशन थे, जो कल्चर थे, उसको बैकवर्ड उन्होंने रिप्रेजेंट किया था. दे मेड इट सीम दैट एज ऑफ आवर ट्रेडिशंस वर बैकवर्ड, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारी तरह बिहेव करो, एक्ट एज द ब्रिटिश. तो हम लोग क्या करने लगे, वी स्टार्टेड गोइंग बैक टू द रूट्स टू फील दैट नेशनलिस्टिक प्राइड. हम लोग अगर ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हैं तो हम लोग ब्रिटिशर्स की तरह बिहेव नहीं कर सकते. वी कैन नॉट हैव आवर ओन कल्चर विद दैट ऑफ आवर ऑप्रेसर. So we started going back to our roots. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, and myths, and led the movement for folk revival. In Madras, uh, Natesa Sastri published a massive 4-volume collection of Tamil folk, the folklore of South India. He believed that folklore was a national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's thoughts and characteristics. उनके अंदर की भावना है, उनके अंदर का जो क्या बोलते हैं जो कल्चरल जो या फिर जो स्पिरिट है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकलोर और फोक टेल्स के थ्रू पूरे के पूरे इंडिया को सिखा सकते हैं, सुना सकते हैं. दैट वाज टागोर्स एक्चुअल ड्रीम ना, और उन्होंने करके भी दिखाया है ये. As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green, and yellow, was designed in the eight. It had 8 lotuses representing the 8 provinces of British India. ब्रिटिश ने इंडिया को 8 अलग-अलग प्रोविंसेस में बांट के रखा हुआ था. हमारा जो पुराना फ्लैग था, इट वाज रेड, ग्रीन और येलो कलर का था. उसके अंदर एक लोटस हुआ करता था, जो हमारे पूरे के पूरे एग्जैक्टली पूरा का पूरा अखंड इंडिया जो था, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 8 प्रोविंसेस. तो तुम्हारे पास क्या बोलते हैं 8 लोटसेस थे उसके अंदर, representing the 8 provinces of British India, and a crescent moon representing Hindu and Muslims. By 1921, Gandhiji had designed the Swaraj flag,
It was again a tricolor, red, green, and white, and had a spinning wheel in the center, representing the Gandhian idea of self help. Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of डिफाइंस। हम लोग अब ब्रिटिश फ्लैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा खुद का फ्लैग है। when do we basically hoist our own flag? When we feel that we are not part of the ब्रिटिश कल्चर। हम लोग ब्रिटिश से अलग दिखना चाहते थे। हम लोग ब्रिटिशर्स को बता रहे थे कि इंडिया की खुद की आइडेंटिटी है। इंडिया इज नॉट जस्ट टू बी गवर्न्ड बाय यू, इंडिया कैन बी गवर्न्ड बाय इटसेल्फ। इंडिया नीड्स इट्स इंडिपेंडेंस। इंडिया का खुद का फ्लैग, इंडिया इज अ नेशन ऑन टू इटसेल्फ। अ फ्लैग रिप्रेजेंट्स अ नेशन। और हमने हमारा खुद का फ्लैग इसलिए बनाया सो दैट हम लोग ब्रिटिशर्स को बोल सके कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, not it is not something that is to be controlled by you. ठीक है। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be brought about differently. The British saw Indians as backwards and primitive, incapable of governing themselves. In response, India began looking into its past to discover India's greatest achievement. They wrote about the glorious development in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, craft and trade had flourished. उन्होंने ब्रिटिश व्हाट डिड द ब्रिटिश से? ब्रिटिश ने बेसिकली हमको क्या बोला था? एक बैकवर्ड एनिमल्स हैं हम लोग, जो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो फ्लरिशिंग हिस्ट्री है, वी वर द 45% ऑफ जीडीपी बिफोर द ब्रिटिश केम। ठीक है। हम लोगों ने दिखाया कि इंडिया बिना ब्रिटिश के मदद के सालों से, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से बेसिकली एक वर्ल्ड का एक प्राइड एंड जॉय बन के बैठा हुआ है। इट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग मच मोर बेटर देन एनी ऑफ द ब्रिटिश अचीवमेंट्स। ठीक है। सो ये सारा का सारा, हाँ एग्जैक्टली, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले, इफ यू वांट टू enslave a person, you have to destroy their identity first। ब्रिटिशर्स ने यही किया था। हमारा जो बच्चों को वो लोग पढ़ा रहे थे, जब बेसिकली हमारे स्कूल, when the Indian students started studying in the British schools, उन्होंने हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको सत्यानाश कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया था कि जो ब्रिटिशर्स लेके आए हैं वो कल्चर, ब्रिटिशर्स वर द वन टू बेसिकली मेक द इंडियंस मैच्योर। ठीक है। उन लोगों को एक सोशल स्टैंडिंग, उन लोगों को कल्चर के बारे में ब्रिटिशर्स ने सिखाया। ऐसे स्कूल्स में उनको पढ़ाया जाता था। बच्चे जो पढ़ते हैं वही तो बनते हैं, है ना? वॉट एवर अ चाइल्ड लर्न्स, दैट इज वॉट ही बिकम्स इन द फ्यूचर। सो बेसिकली एक फुल जनरेशन, 2-3 जनरेशन में ब्रिटिशर्स ने हमारी कंप्लीट आइडेंटिटी को जो तबाह किया था, उसको रिस्टोर करना, उसको रिपेयर करने के लिए हमने क्या किया? हमारे खुद की हिस्ट्री में जाके देखा। हमारी खुद की हिस्ट्री की जो फ्लरिशिंग इकोनॉमी है, फ्लरिशिंग ट्रेड है, साइंस और कॉमर्स और क्राफ्ट, आर्ट, इन सब का जो हब हुआ करता था इंडिया, उसको लोगों के सामने एज इट इज रखा और बोला कि वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर नॉट बैकवर्ड, वी हैव better understanding of what the world looks like, and we don't have to basically use the Britishers के ऊपर सहारा की जरूरत नहीं है हमें। Now, this glorious time, in their way, was followed by a history of decline. When India was colonized, these nationalist histories urged the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggles to change the miserable conditions of life under the British। ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, हाउ वॉज आवर ancient history, that is ancient history, that is before the arrival of the British, used
टू इंस्टिल। आरब लिखो यार। हाँ, arrive before the arrival of the British used to instill a sense of nationalism in the hearts of Indians। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आ सकता है। इट कुड बी फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर क्या था? द व्हाट वाज द importance of the national flag। ठीक है, ये तुम्हारा एक 1 मार्कर हो सकता है, ये 2 मार्कर हो सकता है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन। हाउ वॉज फोक लोर एंड सॉरी हाउ वॉज फोकलोर नहीं, आर्ट एंड कल्चर। हाउ वॉज आर्ट एंड कल्चर used to build a sense of national pride and among Indians। नेशनल प्राइड एंड आइडेंटिटी अमंग इंडियंस। ठीक है, हर एक पैराग्राफ को मैं एक एक हाँ अमंग इंडियंस आई कैन क्रिएट क्वेश्चंस एवरी एक एक छोटे 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 तुम्हारे इसके बुक के अंदर मैं सभी को क्या बोलते हैं एक एक क्वेश्चन बना के तुम्हें दे सकता हूँ, सो दैट तुमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस याद करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना किस तरह से हमारा जो हिस्ट्री था। दैट इज आई थिंक रियली गुड क्वेश्चन। इफ सीबीएसई वांट्स टू बिकम क्रिएटिव, ठीक है, उनके आंसर शीट में दे कुड आस्क यू, तुम्हें भर भर के लिखना है इसको। ठीक है, गो एज डिटेल्ड डीप एज पॉसिबल। ठीक है, पॉइंट्स में ही लिखो, मगर जितना डिटेल जा सकते हो, जितना इमोशनल कर सकते हो लोगों को, उतना ज्यादा इमोशनल करने की कोशिश करो। दैट इज व्हाट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट। ठीक है, और ये हमारी हिस्ट्री है। हाँ, मार्क्स मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स दिस इज आवर हिस्ट्री। वी शुड बी वी शुड हैव अ सेंस ऑफ प्राइड इन व्हाट ऑल आवर फ्रीडम फाइटर्स डिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्यों नहीं मार्क्स मिलेगा? ये पूरे का पूरा यहाँ पे वी वर नॉट नथिंग, वी वर नॉट एनिमल्स, वी वर नॉट बैकवर्ड बिफोर द ब्रिटिश। ये हम लोगों को हमारे हिस्ट्री ने ही सिखाया है। वी वर नोन एज द गोल्डन बर्ड। हम बिकॉज ऑफ आवर क्या बोलते हैं सर्टन एक्शंस दैट वी टुक, वी वर एंस्लेव्ड। अदरवाइज वी वर द गोल्डन बर्ड, वी वर द गोल्डन चाइल्ड, जो पूरे के पूरे दुनिया में हर किसी का क्या बोलते हैं आंखों का तारा बोलते हैं ना, दैट वाज अस। ठीक है, दिस एफर्ट टू यूनिफाई पीपल with not were not without problems। When the past began being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn by Hindu iconographs, then people of other communities felt left out। So basically, how did we represent the Indian identity as a Hindu standpoint? भारत माता, अ हिंदू फिगर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जितना भी आइडेंटिटी आइडियोलॉजी सारा का सारा तुम्हारा हिंदू तुम्हारा ये जा रहा था। मगर इसके कारण क्या हो रहा था? पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज वर फीलिंग लेफ्ट आउट। ठीक है, यहीं से तुम्हारा हम लोग अगर थोड़ा बहुत सोच के देखें तो हिंदू मुस्लिम क्लैशेस, क्योंकि पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज नॉट जस्ट मुस्लिम्स, पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्टार्टेड फीलिंग कि क्या अगर ब्रिटिश चले जाएंगे, हम लोग एक ऐसे दुनिया में रहने वाले हैं, एक ऐसे राज्य में रहने वाले हैं जहां पे हमारी आइडेंटिटी का कोई वैल्यू नहीं होगा। दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय जिन्ना।
आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, जिन्ना ने ये एग्जैक्टली नहीं बोला था, मगर जिन्ना के मन में भी यही था कि अगर ब्रिटिश चले गए तो क्या मैं एक ऐसे राज्य में रहने वाला हूँ, क्या मैं एक ऐसे देश में रहने वाला हूँ जहां पे हिंदू होना एक फर्स्ट क्लास सिटीजन की आइडेंटिटी है, क्या एक मुसलमान तुम्हारा वही सेम फ्रीडम ले पाएगा? दैट वाज द डाउट दैट बिकेम पाकिस्तान। एक डाउट था वो, दैट इज बेसिकली, और ये डाउट तुम्हारा ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ने उनके कान में घुसा घुसा के बेसिक किया है। ठीक है, वो डाउट ने क्या किया, उस डाउट ने देश को बांट दिया। समझ में आया? दैट of course. See, basically, I'm not saying that we are not. No, 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 no. I won't say that. I won't say that. Of course, communal clashes तब भी होते थे, अब भी होते हैं. But the thing is, अगर हम लोगों ने थोड़ा बहुत, I think, थोड़ा सा चेंज किया होता, थोड़ी और मेच्योरिटी दिखाई होती हमारे लीडर्स, बोथ फ्रॉम द जिन्ना साइड एंड द नेहरू साइड, अगर दोनों ने थोड़ी बहुत मेच्योरिटी दिखाई होती, then India, I think, would have not been divided into India, Pakistan and Bangladesh. नहीं हुआ होता। हाँ, एक, हाँ, एग्जैक्टली exactly. अगर हम लोगों ने थोड़ा और मेच्योरली बिहेव किया होता तो। ठीक है, इन अर्ली टाइम्स फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया marveled at the courage, the truthfulness, and the modern modesty of people of the Arya Vamsham. Now they remark mainly on the absence of those qualities. In those days, Hindus would set out on conquests and hoist their flags, tiranga. Oh, sorry, in Tar- Tarta, Tarta, China, Tarta, China, and other countries. Now, a few soldiers from a tiny island far away are lording it over the land of India. ठीक है, सो हमने भी बहुत सारा कॉन्क्वेस्ट किया था, लाइक बेसिकली वी स्टिल हैव इंडोनेशिया में बहुत सारे हमारे टेम्पल्स हैं, दैट मींस द चोला डायनेस्टी, द चोला चेरा चोला पांड्या डायनेस्टी जो नीचे हमारे साउथ में थे, उन्होंने बहुत सारे जगह में कॉन्कर किया है, लाइक दे हैव आल्सो डन द कॉन्करिंग। मगर अब क्या हो रहा था, एक छोटा सा देश जहाँ पे थोड़े बहुत सोल्जर्स एक पूरे के पूरे देश को कंट्रोल कर रहे थे, हमारे साथ भी यही हुआ। आगे बढ़ते हैं। Now, a growing anger amongst the colonial government was thus was bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle of freedom in the first half of the 20th century. अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ आ रहे थे towards a common enemy. The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, tried to channel people's grievances. उनके जो दुख दर्द है उसको चैनल करने की कोशिश की into organized movement for independence. Through such movements, the nationalists tried to forge a national identity. But as we have seen, diverse groups and classes participated in their movement with varied aspiration and expectations. जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, उनके अलग अलग जो एस्पिरेशंस थे, मतलब उनका जो गोल था, जो उनको चाहिए था, उनका डिमांड अलग था। ठीक है, बिकॉज दे ऑल वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट parts of the world, different economic classes, parts of the world, but now different parts of India, having different economic classes, having different socio cultural classes, उनका जो demands था वो अलग अलग था। So of course when you have multiple demands, sometimes clashes तो होंगे ही होंगे। but as we have seen, diverse groups, यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, diverse groups and classes participated in this movements with varied aspirations and expectations. As their grievances were wide ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people. फ्रीडम का जो डेफिनेशन है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। ये जो इंडिपेंडेंट भारत होगा, हर किसी ने अपना जो इंडिपेंडेंट भारत है उसको अपने मन में एक अलग तरीके से देख रहे थे वो लोग, कि वो लोग इस इंडिपेंडेंट भारत में उनके फ्यूचर को और ज्यादा ब्राइट बना पाएंगे। हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं रे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पीपल कमिंग टुगेदर अगेंस्ट वन एनिमी।
मगर डिफसी पीपल सी, रुको रुको, पीपल फ्रॉम, हाँ, अरे मैं वो समझ गया, अब हम लोग आ गए, वी हैव कम टुगेदर, बट राइट नाउ हमारा, सी, वो तो क्या बोलते हैं, फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट क्वेश्चन। मगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द पीपल थिंक दैट द इंडिपेंडेंट इंडिया शुड लुक लाइक। इंडिपेंडेंट इंडिया अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग इमेजेस पैदा कर रहा था, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उस समय तो कॉमन स्ट्रगल था, किस किस तरह से लोगों ने तुम्हारे इस नॉन नॉन कॉपरेशन नहीं था वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, उससे पहले वाला हाँ नॉन कॉपरेशन ही था, सिविल डिसोबीडियंस उसके बाद आया था, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ द कांग्रेस कंटिन्यूअसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड एंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट द अदर। सो एक टीचर की तरह जो किसी भी स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है, हाँ, जो बेसिकली हर किसी को एक समान प्रोग्राम क्या बोलते हैं आगे बढ़ने का इमेजिन करता है, हाँ, जो अलग अलग लोग अलग अलग स्टूडेंट्स पे अलग अलग एफर्ट मारता है ताकि हर कोई एट द एंड ऑफ द डे दे बिकम व्हाट दे वांटेड, दे गेट व्हाट दे वांटेड, दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू डू। हाँ, अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड्स है, उसके हिसाब से आई हैव टू एडजस्ट माई सेल्फ, और उसके हिसाब से आई हैव टू मोटिवेट, आई हैव टू स्कोल्ड, आई हैव टू चिल्लाना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जहां पे चाहिए वहां पे अप्रिसिएशन देना पड़ेगा। ये सारा का सारा क्या किस लिए हो रहा है, सो दैट तुम लोग अच्छे से एक साथ क्या बोलते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करो, ठीक है। तुम सब लोगों में अलग अलग लोगों के अलग अलग ड्रीम्स और एस्पिरेशंस है, वो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को तुम्हें बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आगे ले जाने का काम होता है एक टीचर का। उसी तरह से नेशनल कांग्रेस का रोल क्या था उस समय, नेशनल कांग्रेस का रोल था कि हर किसी के जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, ताकि जब तक देश को आजादी नहीं मिल जाती, जब तक उनका जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव नहीं हो जाता, तब तक ये यूनिटी को बिना तोड़े बरकरार रखना था। दैट वाज ऑल दैट कांग्रेस वाज डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए टू गिव अस इंडिपेंडेंस, दे हैड टू गो थ्रू हेल एंड कम बैक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज प्रिसाइसली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। क्लैशेस होते थे लोगों के बीच में, अलग अलग कास्ट के बीच में, जाति के बीच में, तुम्हारा क्या बोलते हैं रिलीजन के बीच में, ठीक है, तुम्हारे अलग, तुम इसको प्रे करते हो, हम इसको प्रे करते हैं, तुम इस लैंग्वेज में बात करते हो, हम इस लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं सुन सुन के जब भी हम लोग साथ आने की कोशिश करते, ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि जैसे उनको एक नया एक एस्केप मिल गया है। हर बार क्या बोलते हैं हम लोग साथ आने की कोशिश करते, कहीं ना कहीं से हम लोग टूट जाते। दैट इज द रीजन वी इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये हमारी गलती है, वी वर नॉट एबल टू यूनाइट आवरसेल्व्स एज फास्ट एज पॉसिबल। अगर हम लोगों ने हम सभी को एक जल्दी से जल्दी यूनाइट कर लिया होता, देन वी वुड हैव बीन एबल टू किक आउट द ब्रिटिश बिफोर क्या बोलते हैं 1947 itself। The high point of Congress at activity and nationalistic unity, हाँ बोलो, हिंदी में बोल दो, बोलना है तो, हाँ बोलो। हाँ, वो एग्जैक्टली चीज मैंने यही तो बोला। व्हाट इज योर पॉइंट, मेरे पॉइंट्स को रिपीट मत करो, ठीक है, खुद से कुछ। आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, दिस वाज emerging with a nation with many voices wanting freedom from the colonial rule. Don't just parrot my points, ठीक है। अभी से तुम लोग क्या करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा जो एग्जाम पेपर बनाने वाला व्यक्ति है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ही कुड आस्क एनी क्वेश्चन। तो तुम्हें जब जब मैं ओपनली बात कर रहा हूं, यू हैव टू पुट सम डिफरेंट आइडिया, कुछ और तुम्हें ऐड करना है। डोंट जस्ट से व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, वो तो दैट इज क्या बोलते हैं, मतलब कि पैरट की तरह जो चीज वापस बोली उसी को तुम बोल रहे हो। खुद से सोचो पॉइंट्स। हिस्ट्री में
हम लोगों को अगर बहुत कुछ लिखना है तो हम लोगों को खुद से सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट, द फेलियर ऑफ क्रिप्स mission and the effects of World War II created widespread discontentment in India. This led Gandhi ji to launch a movement called the Complete Withdrawal of British from India. The Congress Working Committee, in its meeting in Vadra in 14th July 1942, ठीक है, वाड्रा में क्या हुआ, passed a historic quit India resolution demanding the demanding the immediate transfer of power to Indians and quit India. तो यहाँ पे तुम्हारा एक क्वेश्चन निकल के आता है, when was the RESOLU resolution of quit India? Huh? When was the resolution of quit India passed by the Congress? ठीक है, कहाँ पे पास हुआ था, कब पास हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पास हुआ था वाड्रा में इन 1942 में पास हुआ था, क्विट कर दो, इंडिया से भाग जाओ। ठीक है, और इस क्विट इंडिया मूवमेंट की खासियत क्या थी, वो लोग चाहते थे, व्हाट वाज द रीजन, अगेन एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, कंटिन्यूएशन, व्हाट वाज व्हाट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट था क्या? On 8th of August 1942 in Bombay, the All India Congress Committee endorsed the resolution which called for a non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country. It was on this occasion, नए बुक में है, it was on this occasion that Gandhi ji delivered the famous do or die speech. The call for quit India almost brought the state machinery to a standstill in large parts of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement. People observed hartal and demonstrations and processions were accompanied by national songs and slogans. The movement was truly mass movement, which brought into its ambit thousands of ordinary people, namely students, workers, and peasants. It also saw the active participation of leaders, namely Jaiprakash Narayan, Aruna Asif Ali, and Ram Manohar Lohia, and many women such as Mata Rani Hazra in Bengal, and Kan- Kanak 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 Kanaklata uh, Barusa Barua in Assam, and Ram Devi in Odisha. The British responded with much force, yet it took more than a year to suppress the movement. So, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, why did the British divide and rule? क्वेश्चन नहीं है, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, why did the British divide and rule? The British divided India and ruled India because अगर divided रहेंगे तो इन ब्रिटिशर्स के ऊपर एक यूनाइटेड फोर्स अटैक करने के लिए नहीं आएगी। It would be easier for them to conquer and control India. दिस वॉज, ये जो नेशनल लीडर्स है जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आ रहे थे, उन्होंने क्या किया, दे रियलाइज, दे बेसिकली स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग अ होल इंडिया प्रोटेस्ट। पूरा का पूरा इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम was coming together, and basically this was the most feared moment for the British. उन लोगों को पता था कि 1942 होते होते उन लोगों को पता चल चुका था कि जिस तरीके से इंडिया जा रहा है, उनके पास ज्यादा दिनों तक कंट्रोल नहीं रहने वाला है। हाँ, बोल रही थी, कुछ बोलो। हाँ, एग्जैक्टली exactly. धीरे 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 करके हमको सी डिवाइड करके कॉन्कर करना इज द इजिएस्ट है। ठीक है, अगर हम लोग
एग्जैक्टली exactly. हाँ, वी विल बिकम इन्फी हम लोगों को यूनाइट करके रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट सा काम है। इंडिया जो है आजकल का जो नॉनसेंस है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ का हिंदी, साउथ का क्या बोलते हैं लैंग्वेजेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इट इज अ डिवीजन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और साउथ अगर डिवाइडेड हो गए तो क्या होगा? कोई और थर्ड पार्टी आएगा और हमें चूना लगा के चले जाएगा, है ना? हाँ, अलग अलग जगह में तुम मेरा लैंग्वेज नहीं बोल रहे, मैं तुम्हारा लैंग्वेज नहीं बोल रहा। हाँ, तुम अगर मेरे लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते तो मेरे स्टेट से चले जाओ। दैट इज व्हाट, हम लोग इंडिविजुअलिटी में वापस जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इंडिविजुअलिटी में वापस चले गए तो क्या होगा? अगेन सम अदर थर्ड पर्सन विल कम, विल टेक एडवांटेज ऑफ अस, हमें चूना लगा देंगे और हमारे पैसे लूट लेंगे। एंड बेसिकली हम लोग ऐसे ही मुंह लटका के क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, हाँ, ऐसे बस सोचते रहेंगे बस। ठीक है, वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, वॉट एवर रिलीजन में वी बी, वॉट एवर कास्ट, वॉट एवर क्या बोलते हैं, मेल या फीमेल कुछ भी हो, कोई भी तुम्हारा जेंडर हो, कोई भी तुम्हारे बैकग्राउंड हो, कोई भी तुम्हारा कल्चर हो, जब तक हम लोग यूनाइटेड रहेंगे तब तक डेवलपमेंट, तभी हमारा डेवलपमेंट जो है फुल स्पीड में आगे जब बढ़ पाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज वी विल बी विक्टिमाइज्ड, we will be taken advantage of, we will be taken advantages of by other people who are in India as well। अलग अलग पॉलिटिशियंस हमारा एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या बोलते हैं बिजनेस लीडर्स हमारा एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, लोकल लीडर्स, गुंडे लोग, ये सभी के सभी हमारा एडवांटेज ले सकते हैं अगर हम लोग यूनाइटेड खड़े नहीं रहते। अंडरस्टूड? सो हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है। वी हैव टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। नाउ ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, आई थिंक यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, सो इनके जो क्वेश्चंस है इनको ट्राई करके देखो। ओके, और कोई भी डाउट्स है वो मेरे से पूछ सकते हो तुम लोग। मैं और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा नोट्स लेके आऊंगा एंड आई विल पोस्ट देम ऑन माय वेबसाइट। ठीक है, सो ये चैप्टर हमारा ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप मेरे और ज्यादा सोशल साइंस की वीडियोस देख पाओ। ठीक है, सो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।